صدر مملکت عارف الوی کی زیر صدارت علماء کانفرنس۔ صدر مملکت نے کہا علماء عوام کو گھروں میں نماز ادا کرنے کی تلقین کریں، کرونا کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں۔ وبائی امراض سے بچنے کے لیے اسلام نے واضح ہدایات دی۔ جامعہ الازہر نے نماز جمعہ کے اجتماعات منسوخ کرنے کا فتویٰ دیا۔ مساجد کا بند ہونا ملک اور حکومت دونوں کے لیے اچھا نہیں، مفتی منیب کا اعلان۔ طاہر اشرفی بولے حکومتی فیصلے پر سب کا اتفاق ہے۔ ابتسام الہی زہی کی مساجد میں وبا سے تحفظ کی دعائیں مانگنے کی اپیل۔ علامہ باقر زیدی بولے موجودہ صورتحال میں اجتماعات نہیں ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل کوارڈینیشن اجلاس میں بڑے فیصلے۔ تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں 31 مئی تک اضافہ۔ ملک میں مساجد کو بند نہ کرنے کا اعلان۔ جمعے کے اجتماعات اور نماز با جماعت محدود کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان کل بڑے اعلان کریں گے۔ سعودی حکومت نے پاکستان کو حج معاہدہ کے معاملے پر مزید آگاہ کریں گے۔ کرونا وائرس کراچی کی مقامی آبادی میں پھیلنے لگا، مزید 7 نئے مقامی کیسز رپورٹ۔ لاک ڈاؤن کے باوجود شہری باز نہ آئے، کمشنر کراچی کی عمل درآمد سخت کرنے کی ہدایت۔ غریبوں کی امداد کے لیے سندھ سرکار نے 60 کروڑ جاری کر دیے، ہر ضلع 2 کروڑ کا راشن تقسیم کرے گا۔ وائرس کے وار بہرہ کہو اور شہزاد ٹاؤن کے بعد H9 کی رمشا کالونی بھی سیل۔ داخلی اور خارجی راستوں پر فورسز تعینات۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی لاک ڈاؤن جاری۔ ملک میں کرونا کیسز کی تعداد 1130 اور ہلاکتیں 9 ہو گئیں۔ سندھ میں 421 اور پنجاب میں 345 متاثر۔ ظفر مرزا کہتے ہیں طبی عملے کو سامان 5 اپریل تک پہنچ جائے گا، تربیتی پروگرام بھی جلد شروع ہوگا۔ یہ عملہ فرنٹ لائن سپاہی دوسروں کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے والوں کو قوم کا سلام۔ ملک بھر کی جیلوں میں کرونا کے پھیلاؤ کا خدشہ، سندھ میں 829 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب میں تمام خواتین، کم عمر اور معمولی جرائم میں قید افراد کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ پاکستان میں دوسرے روز بھی ڈالر کی اونچی اڑان، عوام پریشان، بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 4 روپے 53 پیسے کا اضافہ، ڈالر 166 روپے 13 پیسے پر بند۔ دنیا بھر میں کرونا 22,000 سے زائد زندگیاں نگل گیا، 4,90,000 سے زائد متاثر۔ اٹلی میں اموات کی تعداد 7,503 ہو گئی، اسپین میں 4,089 اور ایران میں 2,234 افراد نشانہ بنے۔ امریکہ اور فرانس میں 1,000 سے زائد افراد جان سے گئے۔ برطانیہ میں کووڈ-19 کی ٹیسٹ کٹس تیار، گھر بیٹھے 15 منٹ میں نتیجہ ملے گا۔ ملک میں لاک ڈاؤن سے تھیلیسیمیا کے مریض پریشان، خون کی عطیات میں کمی سے شدید مشکلات کا سامنا۔ ڈاکٹرز کی عوام سے خون عطیہ کرنے کی اپیل ہے۔ دو روز کی مندی کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں استحکام، 38 پوائنٹس اضافے کے بعد 27,267 پوائنٹ پر بند۔ مجموعی طور پر 326 کمپنیز کے شیئرز میں کاروبار ہوا۔ کہیں گے میں ہوں کرن اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے نماز جمعہ کے اجتماع سے متعلق خبر دیں۔ ملک کی تمام مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی جائے گی۔ صدر مملکت عارف الوی نے حکومتی موقف پیش کر دیا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے آج نیوز کے پروگرام روبرو میں کہا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی مسجد بند نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 80% لوگوں میں کرونا وائرس کی علامت بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ بھی کہا کہ کرونا وائرس ایک بہت بڑا حملہ ہے، اس وبا سے کل کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا۔ صدر مملکت عارف الوی کی خصوصی بات چیت آپ دیکھ سکیں گے رات 10 بجے پروگرام روبرو میں۔ مسجد بند نہیں ہو رہی، یہ طے ہے۔ مسجد بند کیسے کر ہو گیا کہ مسجدیں بند نہیں۔ بہت بڑا حملہ ہے بیماری کا، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے۔
जो बड़े बड़े हम जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उनको भी नहीं पता कि कल क्या होना है। 80% जिनको कोरोना वायरस होगा उनको कोई सिम्टम नहीं होगा। वो रोजाना मैं देखता हूँ टेलीविजन चैनल, जी ये अस्पताल में नहीं है, ये नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। तो आज आप सुन लो, लिहाजा बीमार मत हो, आज सुन लो ना कि नहीं है, एहतियात करें। बजाय इसके कि बाद में कहना जी वेंटिलेटर अस्पताल में नहीं था। आइसोलेशन सेंटर हम पहले से, जरूरी तो नहीं हम इंतजार करें कि हमारे 20% या 25%, हम अभी से बना तो सकते हैं ना, स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, खर्चा ही आएगा। नहीं मेरे भाई, फिर आपकी गलत फहमी चल रही है कि हुकूमत आइसोलेशन सेंटर्स बना सकती है जितने लोग इससे अफेक्ट होंगे, नहीं बना सकती। सदर ममलिकत का ये इंटरव्यू आज आप रात 10 बजे आज न्यूज़ पर देख सकेंगे। इससे कबल सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने उलमाए कराम से वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी किया। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र उलमाए कराम ने सदर ममलिकत को हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। ममलिकत ने उलमाए कराम से मुशावरत की। वीडियो लिंक के जरिए इजलास हुआ जिसमें तमाम मकातब फिक्र के उलमा शरीक हुए। सदर आरिफ अलवी ने उलमा से नमाज जुम्मा के इज्तिमा से मुताल्लिक फैसला करने की दरख्वास्त की। तमाम उलमाए कराम ने फैसलों का इख्तियार हुकूमत को दे दिया। उलमा ने अवाम से अपील की कि ज्यादातर लोग घरों में नमाज पढ़ें, मसाजिद में नमाज पढ़ें तो फासला कायम करें, बीमार और ज़ईफ अफराद मसाजिद में न आएं। मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। मदारिस के 30 लाख तालिब इल्मों को छुट्टियां दे दी गई हैं। सदर ममलिकत ने कहा कि बीमारी को रोकने का वाहिद तरीका समाजी फासला कायम रखना ही है। पाकिस्तान में मदारिस में नमाज जुमा के इज्तिमा होगा और नमाज पंजगाना भी बाजमात अदा की जाएगी। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। कहा कि मुल्क भर की किसी मसाजिद बंद नहीं की जाएंगी। मसाजिद में लोग ज़रूर आएँ लेकिन एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जाए, सफ़ों में फासला कायम किया जाए। हमने आज अपनी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी इसमें ये तय किया कि मसाजिद को तो हम बंद नहीं होने देंगे। मसाजिद में ज़िक्र अस्कार भी होंगे, मसाजिद से आज़ान की सदाएं भी आएंगी, मसाजिद से तिलावत की आवाज़ भी बुलंद होगी, लेकिन मसाजिद की जमात को, पंच वक्ता जमात को और जुमे के नमाज को महदूद रखा जाएगा उलमाए किराम की मुशावरत और उनकी राय के मुताबिक। मामून खुसूसी सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा कहते हैं कि 5 अप्रैल तक तिब्बी अमले के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तिब्बी अमले की ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम 1 माह में शुरू करेंगे। 5 अप्रैल तक हमारे पास इतनी तादाद में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की चीजें होंगी। वो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स के जो बराह रास्त कोरोना वायरस के मरीजों की निगहदाश्त पे मामूर हैं, उनको इसकी कमी ना आए। एक कौमी सतह पे अपने डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स और खास तौर पे वो जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स में बराह रास्त कोरोना वायरस के मरीजों की निगहदाश्त करते हैं, उनकी एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह ताला हम लॉन्च करेंगे। हमारा पहला हदफ कम से कम 5000 होगा। 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर हम ये ट्रेनिंग अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स को तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं कि ICUs में बिस्तरों की तादाद 19,000 कर दी गई है। पाकिस्तान में इस वक्त 1,54,000 तिब्बी अमला मौजूद है। 450 वेंटिलेटर्स खराब थे जिनमें से 379 ठीक कर लिए हैं। कल से इलाकों की सफाई का काम 12 कहू से शुरू किया जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पे काम शुरू किया था। उस दिन पाकिस्तान में 700 तादाद थी ICU बेड्स की, आज ये 19,670 तक पहुंच चुकी है। क्वारंटाइन की हालत ये थी कि हमारे पास जो क्वारंटाइन तरह की चीज थी वो तकरीबन 400 से 500 बेड थे। आज सूबों के और हमारे क्वारंटाइन बेड्स की तादाद 1,62,000 तक पहुंच चुकी है। जो इलाके बहुत ज्यादा केसेस दिखा रहे हैं उनको डिसइंफेक्ट करने का प्रोसेस कल से सबसे पहले 12 कहू से स्टार्ट करेंगे। चक शहजाद होगा, फिर मर्दान, दीना और सराय आलमगीर करने के बाद मुल्क में जहां जहां ये केसेस ज्यादा हो रहे हैं इंशाल्लाह वहां पे हम जाएंगे। और अभी आपको बताएं, कोरोना वायरस कराची की मकामी आबादी में फैलने लगा। कराची में कोरोना वायरस के 7 केसेस में वायरस की मकामी मुंतकली हुई। शहर में लॉकडाउन के चौथे रोज भी शहरियों की गैर संजीदगी नजर आई। गली मोहल्लों और सड़कों पर कराची में लॉकडाउन का चौथा रोज, लेकिन शहरियों की आज भी गैर संजीदगी रही। शहरी गली मोहल्लों और सड़कों पर घूमते फिरते नजर आए। ताहम तमाम मार्केटें और दफातर बंद रहे।
सिंध हुकूमत ने भी अहम कदम उठाया, मुस्तहकीन के लिए 60 करोड़ रुपए जारी कर दिए। फी कस मुस्तहक को 6,000 रुपए माहाना मिलेंगे। 1 लाख मुस्तहकीन ज़कात मखसूस बैंक की ब्रांचेस से निकलवा सकते हैं। पेशावर में लॉकडाउन, लेकिन बाज़ इलाकों में अवाम का रश बरकरार है। अवाम के इस गैर संजीदा रवैये के बायस कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के खदशात हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत के गैर मामूली फैसले। सूबे में जारी लॉकडाउन में 1 हफ्ते की तोसी, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। अवाम की गैर संजीदगी कोरोना वायरस के खात्मे में बड़ी रुकावट बनी हुई है। लोग उसी तरह सड़कों पे हैं, जिनकी जरूरत नहीं है वो भी खुली हुई हैं, तो इसी वजह से वायरस ज़्यादा फैल रहा है। भी समझते हैं कुछ भी नहीं है। जब आ जाती है तो फिर कहते हैं कि यार ये तो बड़ी बुरी बात है, ये तो उसको भी लग गई है, तो बस समझेंगे आप कि जब इनके ऊपर आएगी तो फिर समझेगी। ऐसे नहीं समझती ये जिस कौम है। एहतियाती तदाबीर, ना ही सोशल डिस्टेंस, बस छुट्टियां गुजारनी है और लोगों से मिलना जुलना भी है। सुख के बजाय दुख में अपने आप को डालते हैं। मुबादन किस तरह के और हालात बन जाए, इटली के फॉरेन जितने कंट्रीज हैं उसमें लाशें पड़ी हैं। खुदारा मैं इनसे ये इल्तिमास करता हूँ कि आप अपने घरों में अपने बच्चों, अपने घर वालों का सरमाया कम अज़ कम बन जाए कि आपका घराना महफूज रहे। आवाम घरों में नहीं बैठ रही, बाहर घूम रही है, सैलो तफरीह कर रही है। यूरोप की तरह इधर भी ये हाल होगा तो ये तब समझेंगे। कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात अपनी जगह, लेकिन जब तक अवाम को घरों तक महदूद नहीं किया जाता तो डरना नहीं लड़ना है का नारा महज नारा ही साबित होगा। रमन आदिलज़ादा के साथ काशान अवान, आज न्यूज़ पेशावर। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को हज माहिदे से मुतालिक सहूलियात पर काम करने से आर्जी तौर पर रोक दिया। सऊदी वज़ीर हज उम्रा का मरासला वज़ीर मजहबी उमूर को मौसूल हो गया। सऊदी वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर साले बिन ताहिर ने वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी को मरासला भेजा है, जिसमें कहा गया है कि रिहाइश और ट्रांसपोर्ट किए जाए। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि इस साल ये मालूम नहीं कि हज 2020 का ऑपरेशन मुकम्मल होगा या नहीं, लिहाजा पाकिस्तान ने जिन कंपनियों से माहिदे करने हैं फिलहाल वो ना किए जाए। सऊदी हुकूमत सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। सूरत हाल बेहतर होते ही इस सिलसिले में मजीद आगाह करेंगे। वजारत मजहबी उमूर ने सऊदी हुकूमत की इतला के बाद हज ऑपरेशन पर काम रोक दिया है। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ इन तमाम मालिक को यह हिदायत जारी की है जहाँ से 1 लाख से ज़ायद ज़ायरीन हज के लिए हिजाज़ मुक़द्दस का सफर करते हैं। पंजाब भर में तीसरे रोज भी लॉकडाउन जारी है। लाहौर शहर में नाके तो लगाए गए हैं, मगर शहरियों ने तमाम अहकामात हवा में उड़ा दिए। सड़कों पर वजूहात बताकर आमद-ओ-रफ्त जारी रखे हुए हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे फैसल। रफ्त जारी रखे हैं, किसी का रिक्शा ही अपना है तो कोई हमसाया साथ लेकर जा रहा है। डबल सवारी पे पाबंदी है तो हम लोग रिटर्न ट्रैवल करके आए हैं स्पेशल, इसीलिए ना गाड़ी आने दे रहे हैं ना लोकल कोई चल रही है, तो हमने तो ड्यूटी पे जाना है, हमारी तो मजबूरी है। काम ना करेंगे तो तब भी मारी जाएंगे। कौन सा हमें राशन दे रहे हैं या कोई चीज़ हमें दे रहे हैं। सिक्योरिटी अदारों की जानिब से घरों से निकलने वाले शहरियों का शनाख्ती कार्ड चेक करने के साथ इन्हें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी जा रही है। ताहम शहरियों का कहना है कोरोना वायरस की जंग में अवाम को हुकूमत का साथ देना चाहिए। कोरोना वायरस बहुत बुरी वबा आई हुई है, इससे लोगों को एहतियात करना चाहिए, मास्क पहनने चाहिए। हमें इटली और चीन से सबक सीखना चाहिए कि जिस वक्त कोई मुश्किल आए आप अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की तरफ रुजू हो, तस्बीह करें, नमाज़ें पढ़ें और घरों में आप रहें। घर में रहना चाहिए, लेकिन उनको खाने का बंदोबस्त भी तो होना चाहिए ना। मैं आज सुबह से निकला हुआ हूँ, बड़ी दूर गया हूँ, वहाँ से 200-400 रुपये मिला, चलो बच्चों के लिए कुछ लेके जाऊँ। हुकूमत पंजाब के ऐलान पर तीसरे रोज भी फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और सियालकोट समेत सूबे भर में सनती मराकिज, कारोबारी मराकिज बंद हैं, जबकि मेडिकल स्टोर, दूध, दही और सब्जी की दुकानें खुली हुई हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर जरूर अपनानी चाहिए। कोरोना तब तक आपके घर नहीं आएगा जब तक आप उसे लेने बाहर नहीं जाएंगे। कैमरामैन नदीम नसीर के साथ फैसल तारिक, आज न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स, नर्सेस और तिब्बी अमला फ्रंट लाइन सिपाही, दूसरों के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालने वालों को कौम का सलाम। मजीद बताएंगे काशान अमान।